the given compound is aromatic, है ना. If it is not containing the benzene ring, तो we identify or determine its chemical property, है ना. Once we determine the chemical property, then we confirm that the given compound is aromatic or non-aromatic. So what are these chemical property? These common chemical property is one of the analytical parameters. सब में पहला क्या रहता है? Analytical parameter, and second one is the chemical property, that is it undergo the substitution reaction but not undergo the addition reaction, though it containing the degree of unsaturation, है ना. If we see the molecular formula of any of the aromatic compound, just take the example of benzene that having the C6H6, so that show the degree of unsaturation, है ना. So primarily anyone says that the compound having the molecular formula is C6H6, that containing the degree of unsaturation, that's why it easily undergo the addition reaction. Addition reaction, like if it is treated with the bromine water, so formation of a corresponding vicinal or geminal dihalides. If it is undergo the treated with the cold potassium permanganate, formation of a glycol, है ना. But same way, if we come same benzene or any aromatic compound is treated with the benzene or cold potassium permanganate, so no reaction is takes place, means no decolorization of the bromine water or potassium permanganate takes place, है ना. So this indicate that something is special, something special characteristic associate with the benzene or aromatic compound that resists to undergo the addition reaction but easily undergo the substitution reaction. So this is the chemical property by which we can identify the given compound is aromatic or aliphatic. तो उसमें सब में common example or most familiar chemical reaction is the electrophilic substitution reaction, है ना. Because the benzene that though containing the degree of unsaturation but not undergo the addition reaction but undergo the substitution reaction, है ना. So this is due to the stability, spatial stability, and this spatial stability is due to the resonance, or resonance is nothing but the delocalization of electron. So this delocalization of the electron that continuously delocalize or revolve all around the molecule, both from above and below. So this render the aromatic compound, or this render the benzene ring electron rich. This render the benzene or aromatic ring electron rich, है ना. So that's why this is the best place, or this is the best place for the compound that having the electron deficient. और हमें तो पता ही है क्या electron deficient रहता है, कौन सा reagent रहता है electron deficient. Yes. Electrophile. Electrophile, है ना. तो that's why this is the best place for the electrophile, because it is a electron loving and electron deficient species, है ना. That's why क्या होता है यहाँ पे, the substitution of the one electrophile by the another electrophile means the coming electrophile is electron deficient, और जो electrophile leave करता है, that leave the benzene system or that leave the aromatic system is also the electron deficient, means that leave the benzene ring or that leave the aromatic system by leaving the electron pair on a carbon atom. For example, if we treat the benzene with a concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid, so what happens? This is a nitration reaction. The NO2 group, that is electron deficient species, that approaches to the benzene ring, that approaches to the benzene ring. That approaches to the benzene ring because of the benzene is electron rich species. And the hydrogen atom that is attached to the carbon atom of a benzene ring leave the carbon atom of a benzene by leaving the electron pair on a carbon atom. Says screen is not visible. क्या प्रॉब्लम आ रहा है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअली है ना वो क्रश हो रहा है वो ऑनलाइन, पता नहीं. एक मिनट में वो शेयर कर रहा हूँ.
स्क्रीन जब भी ना नजर नहीं, वैसे तो मैं मोबाइल में देख रहा ही हूँ, कभी स्क्रीन चलेगी तो मुझे भी नजर आ रहा है वो, पर अब भी कभी कुछ होता है तो मुझे रिमाइंड कर लो ऐसा इमीडिएटली, है ना। तो समझ में आ रहा है आपको, जो इलेक्ट्रोफाइल, वन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस बाय द अनदर इलेक्ट्रोफाइल, है ना, दिस इज द कॉमन। तो हमने कौन से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा है? हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में सभी आते हैं, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, है ना, देन द नाइट्रेशन, देन सल्फोनेशन, देन फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन एंड Sulfonation, फ्रीडल क्राफ्ट alkylation. अल्काइलेशन, है ना। तो ये जो 5-6 एग्जाम्पल देखा है हमने, that that all the aromatic compounds shown the same type of reaction. Just take the example of phenol, just take the example of aromatic aryl amines, that is aniline, or just take the example of the polycyclic aromatic hydrocarbon। जैसा देखो आपका है ना, 4th नंबर का चैप्टर है, जैसा सिलेबस होगा आपके पास में, तो हाँ 4th नंबर का चैप्टर है, दैट इज पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। इसमें जो नैप्थेलिन है, फिनांथ्रीन है, एंथ्रासीन है, डाइफिनिल मीथेन है, all these are the aromatic compound, है ना। तो these aromatic compound also show the same type of reaction। कौन सी? that is इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये समझ में आ गया हमको, दिस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ 3 step। फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन, second one is the electrophilic attack to the aromatic ring, that is giving the aromatic cation, and third step Deprotonation. deprotonation, है ना, and for then reformation of the regain the aromaticity, है ना। तो these are the 3 step involved in a electrophilic aromatic substitution reaction, है ना। the next one is important bit, और इस पे इतना important तो नहीं बोल सकेंगे, इतना फोकस नहीं किया है नियर अबाउट आप, है ना, 2-4 साल के लास्ट पेपर भी चेक किया तो इस पे इतना क्वेश्चन नहीं रहता है, बट इट इज नेसेसरी टू study or understand the aromatic nucleophilic substitution reaction, what is, है ना। तो as per yesterday discussion we already talk the what is the aromatic nucleophilic substitution reaction. This is the substitution of one of the nucleophile by the another nucleophile, है ना। मीन्स ये रिएक्शन में इफ वी ट्रीट द बेंजीन, बेंजीन भी कभी हम ट्रीट करते हैं कोई न्यूक्लियोफाइल के साथ में, तो हाइड्रोजन है ना, नॉट लीव द कार्बन एटम एज अ प्रोटॉन बट लीव एज अ हाइड्राइड। हाइड्राइड मीन्स क्या रहेगा, उस पर निगेटिव चार्ज रहेगा हाइड्रोजन एटम पे, है ना। तो दिस इज द रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वन न्यूक्लियोफाइल बाय द अनदर, दैट इज कॉल्ड एज द nucleophilic substitution reaction। But this nucleophilic substitution reaction that occur on an aromatic system, that's why we are called the aromatic nucleophilic substitution reaction, है ना। जैसा देख लो एग्जांपल, if we treat the aryl diazonium chloride salt with a sodium hydroxide or potassium hydroxide, or just heated at a higher temperature, so what will we get? We get the chlorobenzene। क्या मिलेगा हमको? क्या मिलेगा? सर क्वेश्चन रिपीट करिए ना। if we I think everyone know that the diazonium compound is unstable at a higher temperature, got it? Yes sir. है ना। ये I think Yasser sir already talk you regarding the diazonium salt, है ना। this reaction is carried out at a temperature, yes anyone? हाँ, ये क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए भी रह सकता है, आपको एमसीक्यू के लिए what is the following what are the condition 15 to required to 20 proceed the diazonium preparation? Diazonium 15 to 20 degree Celsius. नहीं, 0 to 5 degree Celsius the diazonium, otherwise if the reaction is carried out at a higher temperature it may catch the fire, है ना। क्या हो जाता है, एक explosion या उसको क्या, it may catch the fire। तो that's why the diazonium reaction should be carried out at a low temperature। For example, I think the qualitative analysis test already you perform in first year, is I'm correct? Yes sir. So in that how will you identify the primary amines? प्राइमरी अमाइंस को कंफर्मेशन के लिए क्या प्रोसीजर किया था आपने? एनिलीन किया होगा ना लिक्विड में? किया था क्या? सॉलिड के लिए आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस टेस्ट? सर टेस्ट परफॉर्म किया था वो प्राइमरी
हाँ, प्रीलिमिनरी टेस्ट परफॉर्म किया था, फिर उसके बाद में आपने लैसिगन टेस्ट परफॉर्म किया था, फिर उसके बाद में एलिमेंट डिटेक्शन टेस्ट परफॉर्म किया था, फिर उसके बाद में आपने फंक्शनल ग्रुप टेस्ट किया था, और सब में लास्ट कौन सी टेस्ट परफॉर्म करते हैं आप? सिटी करते हैं कि नहीं? यस सर, कंफर्मेशन टेस्ट, कंफर्मेशन। कंफर्मेशन टेस्ट। Yes. तो आपको देखो एक लिक्विड भी दिया होगा, स्पेशली दो लिक्विड हमें ना यूजुअली हैंडल करते हैं, एक तो बेंजाल्डिहाइड, वो तो एकदम से उसका है ना ऐसा बिटर एलिमेंट की जैसी स्मेल आती है ना? किया है आपने? यस। सर अभी याद नहीं आ रहा है, बहुत दिन हो गए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी देखो जब आपको मैं पूछा हूँ आपको व्हाट इज योर 12th परसेंटेज, तो हम बोलते हैं हमको है ना 70% है, 78% है, 90% है। तो इन सेम वे whenever you pass the degree or whenever you pass the PG or whenever you pass the whatever the examination, तो anyone just you ask, जब कोई भी HR जब क्वेश्चन पूछेंगे आपको, HR is not a technical person, है ना? जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो रिक्रूटमेंट कराते हैं इंडस्ट्रीज में, है ना? Yes, sir. तो दे आर नॉट ए टेक्निकल पर्सन, वो टेक्निकल पर्सन नहीं रहते, वो एचआर रहते हैं, दैट हैविंग दैट बैकग्राउंड हैविंग द एमबीए और या दूसरा कोई भी रहता है उनका। तो दे आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन योर परसेंटेज, मींस दैट परसेंटेज ऑफ नॉलेज यू हैव। फॉर एग्जांपल इन डिग्री, फॉर एग्जांपल इन बी फार्म यू हैव स्कोर द 85%, तो ही और शी परसेप्ट दैट, ही परसेप्शन क्या रहता है उनका, शी हैविंग और ही हैविंग द 87% ऑफ फार्मेसी। समझ में आ रहा है आपको? योर परसेंटेज डिपिक्ट द नॉलेज ऑफ योर करस्पॉन्डिंग डिग्री, है ना? तो आपको है ना, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो फर्स्ट ईयर में हो गया, सेकंड ईयर में हो गया, थर्ड ईयर में हो गया, है ना? एक आधा समझो, फॉर एग्जांपल ले लो एमबीबीएस डॉक्टर ने ना फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था हाउ टू इंजेक्ट द आईवी, है ना? आईवी उसने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, फिर उसके बाद में पास आउट हो गया, और उसके बाद में ना फाइनल ईयर में या जब वो प्रैक्टिस कर रहा था वो भूल गया, आईवी भूल गया यार मैं कैसे देने का, और वो किधर भी है ना प्रिक करते रहा, तो जमेगा ऐसा? नो सर। नो सर। हाँ, तो यू शुड थरोली विथ ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ योर डिग्री, है ना? क्योंकि कौन सा पॉइंट है ना किधर क्लिक होगा आप नहीं बोल सकते। जैसा मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता हूँ मैं, इमीडिएटली व्हेन आई पास द पोस्ट ग्रेजुएशन एम फॉर्म, तो इमीडिएटली मैं मेरा शॉर्ट लिस्टेड हुआ था एलेम्बिक गुजरात में। तो एट दैट टाइम आफ्टर ग्रेजुएशन, दो आई एम कंप्लीटेड माय स्पेशलाइजेशन इन केमिस्ट्री, पर वहां पर मुझे क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लैसिगन टेस्ट, तो वो तो फर्स्ट ईयर में ही हुआ रहता है ना वो। यस सर। तो वो 8 साल में वो क्वेश्चन पूछा था वो लोगों ने मुझे 8 साल के बाद में, पर वो था मुझे पता तो वो बोल दिया मैंने, हो भी गया था मेरा सिलेक्शन वहां पर। तो ऐसा रहता है, तो यू डोंट स्किप एनी पॉइंट, है ना? और ऐसा बोलने भी नहीं हमको, क्योंकि योर परसेंटेज डिपिक्ट योर नॉलेज, है ना? तो आपने देखो एनिलीन किया था, एनिलीन इज इन अ लिक्विड फॉर्म, तो आपने सभी टेस्ट परफॉर्म करने के बाद में टेस्ट परफॉर्म किया होगा कंफर्मेशन टेस्ट, है ना? या अदरवाइज है ना आपने फंक्शनल ग्रुप टेस्ट परफॉर्म किया था, तो ये डाइजोनियम टेस्ट है। द प्राइमरी अमाइंस आर आइडेंटिफाइड बाय द डाइजोनियम सॉल्ट टेस्ट, है ना? तो दिस टेस्ट यूजुअली और स्ट्रिक्टली परफॉर्म इन बिटवीन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। जैसे हमें ना क्या लेते हैं इसमें, सोडियम नाइट्रेट लेते हैं, फिर उसके बाद में HCl लेते हैं, दोनों को भी क्या करते हैं, कूल करते हैं एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। जैसे है ना जो भी कंपाउंड की टेस्ट करना है, जैसे एनिलीन हो गया या प्राइमरी अमाइंस में क्या करते हैं, HCl ऐड करते हैं, डाइल्यूट उसको 0 to 5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं, फिर सोडियम नाइट्रेट को है ना अलग से, और उसके बाद में HCl उसमें ऐड करके इसको भी 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन करते हैं। व्हेन बोथ द डिफरेंट टू सॉल्यूशन रीच टू द बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, फिर उनको इंटरमिक्स करते हैं बाय मेंटेनिंग द टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, है ना? तो then there is a formation of a diazonium, aryl diazonium salt, that compound containing the two ग्रुप, है ना? तो डाइजो मैंने कल भी बोला था, हाउ टू आइडेंटिफाई, रिमेंबर, डाई मींस टू और एजो मींस नाइट्रोजन, टू नाइट्रोजन एटम कंपाउंड, है ना? तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर अवर डिस्कशन, बट यू शुड नो दैट। तो डाइजोनियम टेस्ट इज फॉर द प्राइमरी अमाइंस, है ना? तो ये सेम हमें ना डायरिल डाइजोनियम कंपाउंड को कभी हीट करते हैं, मींस इफ द टेम्परेचर जस्ट गो अबाउ द 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, तो वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज होगा, दैट कंपाउंड गेट डिस्ट्रॉय, है ना? तो इमीडिएटली डिस्ट्रॉय के क्या फॉर्म हो जा रहा है वहां पे, क्लोरोबेंजीन हो जा रहा है, जो कि कल हमने देखा है। दैट इज वो रिएक्शन को हमने क्या बोला था,
Unimolecular reaction. Unimolecular aromatic nucleophilic substitution reaction. Substitution reaction. Substitution reaction. So there are the various type of reaction the aromatic compound undergo if it is containing the electron withdrawing group, है ना, जैसा हमने इसके previously देखा था. तो aromatic compound और benzene compound resist to undergo the aromatic nucleophilic substitution reaction because of there is a repulsion between a aromatic compound and coming nucleophile because both are the electron rich species, है ना. तो बोथ आर रिपल्स, और जो रिपल्स करेंगे तो फिर वो रिएक्शन पॉसिबल रहेंगी क्या? No, sir. No, that but on the other hand, if a aromatic system or benzene itself containing the electron withdrawing group, तो क्या आता है? इलेक्ट्रॉन withdrawing group withdraw the electron from benzene and leave the aromatic system electron deficient. So this facilitate, means the electron withdrawing group facilitate for the aromatic nucleophilic substitution reaction. समझ में आ गया आपको ये बात? Yes, sir. Yes. So that facilitate for the, तो वही देखो ये point, this point should be noted that if the aromatic system or benzene that containing the electron withdrawing group, so it may undergo the nucleophilic aromatic substitution reaction. समझ में आ रहा है आपको? ये देखो क्या है, आप है ना थोड़ा सा गौर करेंगे तो I think we spend more than 10 to 15 lecture on this particular topic. Got it? Yes, sir. Yes, sir. So, but my point of view, still we are not cover the near 20 to 50 part भी हमने cover नहीं किया इसका, क्योंकि हम इसके application देखेंगे. For example, the unimolecular aromatic substitution reaction का pharmacy में क्या use है? Means particular to the API synthesis, particular to the any one of the binder synthesis, particular of the any one of the pharmaceutical aid synthesis, है ना. तो ये कौन से अलग-अलग हम इसमें देख सकते हैं, पर उतना हमारे पास में टाइम नहीं होने की वजह से हम क्या करते हैं, जनरल रिएक्शन लेते हैं. जैसे तो भी हमने ना देखो इलेक्ट्रोफिलिक में ना हेलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन ये देखा है. बट दिस इज नॉट जस्ट ओनली द रिएक्शन electrophilic aromatic substitution. There are the n number of the reaction that shown by the aromatic system benzene that are the too much importance for the synthesis of a pharmaceutically active ingredient, है ना. जैसा पैरासिटामोल ले लो, डाइक्लोफिनाक ले लो, शिराटोपेप्टिडेज देख लो, या उसके बाद में कोई भी एटिनिलॉल ले लो, मिटफॉर्मिन ले लो. हाउ टू सिंथेसाइज दिस कंपाउंड, है ना. ये क्या है? ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है. ये डेफिनेटली सिंथेसिस ही करना पड़ता है ना हमको. Got it? Hello? Yes, sir. तो Yes, जैसा sir. DDT हमने देखा था कैसे सिंथेसिस करते हैं, तो सेम वे है ना, जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, पर वो हम नहीं कवर कर सकते क्योंकि ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द टाइम, है ना. तो भी आप है ना वो देखने के लिए आप है ना बुक रेफर कर सकते हैं, या आपको कोई बुक नहीं मिलती है ऑनलाइन तो मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको बुक शेयर करूंगा पर्टिकुलरली. जैसे द नेम रिएक्शन बाय समथिंग बी ली बोलकर है, ब्रेट ली या समथिंग ऐसा कुछ, तो ब्रेट ली तो नहीं, वो क्रिकेटर है, वो ऐसा ली है समथिंग कुछ, तो भी उसने बहुत अच्छे से कवर किया है नियर अबाउट मोर देन थाउजेंड्स रिएक्शन टेकिंग टू द कंसीडरिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट, है ना. तो वो आप है ना बुक मेरे पास में वो शेयर कर सकता हूँ मैं आपको, तो वो देख लो आप, है ना. तो means the aromatic system or benzene ring undergo the nucleophilic substitution reaction. Got it? But when it containing the any electron withdrawing group, or otherwise the reaction we have to carry it out at a higher temperature or higher pressure, है ना. या otherwise the presence of the higher nucleophilicity reagent. समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Yes. Yes. तो this reaction proceed by following any one of the mechanism. Like first one is the unimolecular, second one is the bimolecular, or the third one is type of the benzyne or arine intermediate. समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Yes, sir. So
whether the reaction that proceed through the primary, that is the unimolecular aromatic nucleophilic substitution reaction, या otherwise bimolecular aromatic nucleophilic substitution reaction, या otherwise addition elimination या aromatic nucleophilic substitution reaction involving the arine as a intermediate. तो ये कौन से भी एक तरीके से जब प्रोसीड होगा तो how will we predict whether it is follow the primary, secondary, or that is unimolecular, bimolecular, or arine intermediate? It is totally depending on a nature of substrate. It is totally depending on a nature of substrate. Got it? Yes, sir. है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कॉल्ड जस्ट देर इज अ रिएक्शन गिवन द अरील बेंजीन क्लोराइड, अरील डाइजोनियम क्लोराइड, और मैंने प्रोडक्ट बताया है क्लोरोबेंजीन, या अदरवाइज मैंने क्या बताया है अरील डाइजोनियम ब्रोमाइड, और प्रोडक्ट क्या आ रहा है वहां पे रिएक्शन एरो पे दिया है, हीट दिया है, और प्रोडक्ट आ रहा है ब्रोमोबेंजीन. तो आइडेंटिफाई द रिएक्शन प्रोसीड बाय व्हिच मैकेनिज्म, यूनिमोलिकुलर, बायमोलिकुलर और अराइन इंटरमीडिएट? Unimolecular. यू डेफिनेटली समझ में आया बोले तो इसका मतलब है ना आपको. तो ये समझ में आ रहा, रिएक्शन तो प्रोसीड होती है बट इट मे फॉलो द एनी टाइप ऑफ द मैकेनिज्म, लाइक प्राइमरी हो गया या यूनिमोलिकुलर हो गया, बायमोलिकुलर हो गया या अराइंस हो गया, है ना. जैसा पर है ना हम अल्किल हैलाइड का इजीली प्रेडिक्ट करते हैं सबस्ट्रेट पे. जैसा फॉर एग्जांपल कल भी हुआ था, प्राइमरी अल्किल हैलाइड प्रोसीड बाय द SN2 type of reaction. Secondary, it is totally depending on a reaction condition, whether it is follow the SN1 or SN2 type of reaction. On tertiary alkyl halide definitely follow the substitution if it is undergo the nucleophilic substitution reaction. So proceed by the which mechanism? Unimolecular. Unimolecular, that is SN1 type of One reaction. way. So yeah, but in case of the aromatic nucleophilic substitution, there is some difficulty or there is some confusion regarding for the identification whether the reaction, though it giving the proceed by the nucleophilic aromatic substitution reaction, but it might be the for the difficulty for understanding or just predicting whether it follow the unimolecular, bimolecular or that is arine intermediate, है ना. तो उसमें से हमने ना in previous lecture already we studied the unimolecular aromatic nucleophilic substitution reaction and bimolecular aromatic nucleophilic substitution reaction. ये दो reaction हो गए थे हमारे कल. Yes, sir. तो मुझे कोई यूनिमोलिकुलर के बारे में बताएगा, डिस्कस करेगा, या मैं नाम लूं उसका? जैसा देख लो यहाँ पर कौन है, ऋषिकेश बोर्डे है. ऋषिकेश बोर्डे, ऋषिकेश बोर्डे है? हेलो सर. हाँ बोलो ऋषिकेश, बोलो यूनिमोलिकुलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बोलो कुछ. सर याद नहीं. वेरी गुड फॉर योर लॉयलिटी. आपने ना सही बोला, बोलो तो आपको नहीं पता बात कर रहा. आपने उसके बाद में मुजम्मिल शेख, मुजम्मिल. यस सर. यस सर. हेलो. हाँ बोलो बोलो, आवाज नहीं, बोलो जोर से बोलो. हाँ बोलो मुजम्मिल, बोलो. कल लेक्चर में नहीं था सर. नहीं, चलो वेरी गुड. आमीन खान. यस सर. हाँ बोलो, यूनिमोलिकुलर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में क्या समझा था कल? सर वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन इन रिएक्शन, डायोजोनियम सॉल्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है नाइट्रोजन ग्रुप का. वो हाँ नहीं, इसका मैकेनिज्म, हाँ मैकेनिज्म, रिएक्शन प्रोसीड इन हाउ मेनी स्टेप्स? 2 स्टेप्स सर. डेफिनेटली फॉलो द व्हिच टाइप ऑफ ऑर्डर, काइनेटिक ऑर्डर? SN1 सर, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन. नहीं, again don't confuse this aromatic nucleophilic substitution reaction with the SN1 and SN2. They are not a parallel reaction. Got it? हम है ना unimolecular aromatic nucleophilic substitution reaction को SN1 नहीं बोल सकते हैं. SN2 को हम bimolecular aromatic nucleophilic substitution reaction नहीं बोल सकते. Both are the different reaction.
the SN1 SN2 reaction or SNI reaction that takes place on a sp3 hybridized carbon atom, and aromatic nucleophilic substitution reaction that takes place on a sp2 hybridized carbon atom. Again, in SN2 type of reaction, the bond breaking and bond making takes place simultaneously. This is the example of concerted type of reaction. This is the example of concerted type of reaction. But the bimolecular aromatic nucleophilic substitution reaction, this is not a concerted type of reaction. Means the coming group form the bond. There is a firm bond between a carbon atom and coming nucleophile. There is a firm bond between a carbon atom and coming nucleophile, but still there is a bond between a carbon atom and leaving group. और सेकंड स्टेज में क्या होता है वो, देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम एंड लिविंग ग्रुप जब बॉन्ड होता है. बट इन केस ऑफ द SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस इज अ सिंगल स्टेप एंड बॉन्ड ब्रेकिंग and bond making takes place simultaneously. That is a concerted type of reaction. So that's why we can't correlate this reaction with each other. They are totally the different reaction, है ना. तो आपने बोला है, क्या बोला आपने, यूनिमोलिकुलर aromatic nucleophilic substitution reaction proceed in a two step that follow the second order kinetic, है ना. और सर First स्टेप order, 1 sir. रेट First डिटरमाइनिंग order स्टेप kinetic. होती. sorry first order kinetic. Why it follow the first order kinetic? सर क्योंकि उसमें सर एक ही of reaction सबस्टेप rate. रहता है सर उसमें. बराबर है. बोले तो क्या हो रहा है इसमें, फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो स्टेप, एंड स्लो स्टेप में क्या होता है, जस्ट इन्वॉल्व द वन स्पीसीज, दैट्स व्हाई फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक. एंड transition state involvement, there is a bond breaking between carbon atom of a aromatic ring or benzene ring and nitrogen atom is breaking, and this is a slow step. So the slow state determines the rate of reaction, है ना. That's why it follow the first order kinetic. और second में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना. और why this reaction proceed, because the intermediate that is the transition state में जो फॉर्म हो रहा है aryl cation, that stabilize aryl anion फॉर्म हो रहा है ना वहां पे, that cation फॉर्म हो रहा है ना, aryl cation फॉर्म हो रहा है ना, aryl cation. तो that stabilized by the resonance, है ना. Yes sir. समझ में आ रहा है आपको? Yes sir. है ना. एक लेमैन है ना, वन थिंग यू शुड नोट दैट, और वन शुड यू रिमेंबर दैट, if the intermediate is stable in a stepwise reaction, then reaction is proceed, or otherwise if the formation of a two or more product from the same reaction, so the majority of the product is depending on the stability of the intermediate. समझ में आ रहा है आपको ये बात? नहीं सर. ये बात आपको है ना क्लियर होंगी मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन में से, है ना. मार्कोनिकोव एडिशन में भी क्या होता है, दो इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं, पर है ना मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज डिपेंडिंग ऑन अ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, है ना. Yes, sir. हाँ, वो एक मर्तबा देख लो मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन, ये है ना कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है. आपने ना इवन स्पेशलाइजेशन फार्मास्यूटिक्स में कर लो, या कोलॉजी में कर लो, या कोग्नोसी में कर लो, केमिस्ट्री में करेंगे तो लगेगा ही वो पीछे, पर है ना किधर भी लगा तो वो रहेगा ही वो. जैसा देखो ना, कोई भी किसी ने पूछा कुछ भी बात पूछा तो एक जैसा एक्सपेक्टेड रहता है कि जैसे अभी देखो, अब हमारे जो रिलेटिव रहते हैं, किसी ने बोल दिया आपने क्या मैं फार्मेसी कर रहा हूँ, तो जब इमीडिएटली पूछते हैं कि इसको कौन सी टैबलेट है, उसको क्या टैबलेट है, इसको क्या टैबलेट है, भला कि हम 4 साल होने के बाद में भी पता नहीं रहता है बहुत सी बार हमको, है ना. वैसे मार्कोनिकोव भी रूल छोड़ता नहीं, उसको अच्छे से देख लो तो आपको समझ में आएगा. तो एक पॉइंट समझ, ये बोलने का इंपॉर्टेंट ये था क्या, द मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट गिव द मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट. मींस इफ द रिएक्शन दैट गिविंग द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, तो द मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज डिपेंडिंग ऑन अ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट. जो ज्यादा स्टेबल रहेगा वो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट देगा, है ना. तो ये समझ में आ गया यूनिमोलिकुलर. और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यूजुअली द मोस्ट कॉमन एग्जांपल दैट अंडरगो द यूनिमोलिकुलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द अरील डायजोनियम सॉल्ट, है ना. सर ये सेकंड रिएक्शन, क्या ये रिएक्शन में कटायन फॉर्म हो रहा है ना इंटरमीडिएट. हाँ, कटायन फॉर्म हो रहा है. तो स्टेबिलिटी कटायन के ऊपर डिपेंड रहेगी. हाँ. इसमें स्टेबिलिटी कटायन पे डिपेंड रहेंगी, और वो स्टेबल हो रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है. कौन स्टेबलाइज कर रहा है उसको? रेजोनेंस. दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज पॉसिबल, है ना. यस सर.
हाँ, और अगेन एनीथिंग दैट स्टेबलाइज, जैसा है ना, ये देखो हम, और इसमें एक बात याद रखो आप, हमें ना इसमें फैक्टर अफेक्टिंग द रिएक्शन स्टडी कर रहे किया, मैंने कल डिस्कस किया क्या? सर नहीं सर। नहीं किया। तो देखो फैक्टर है ना, दैट इज सिमिलर, एनीथिंग दैट स्टेबलाइज द लिविंग ग्रुप that increases the reaction, anything that increases the nucleophilicity that increases the reaction, anything that stabilizes the intermediate that is carbocation that increases the rate of reaction है। ये समझ में आया? ये तो आपको कोरिलेट करते आएगा, समझ में आया ये फैक्टर? यस सर। यस सर। है ना? ये बोले तो मुझे नहीं लगता कि ये बात है ना डिस्कस करने की, क्योंकि SN1 SN2 में जैसे फैक्टर अफेक्ट करते हैं रिएक्शन को, सेम यहाँ पर ही करते हैं वो, है ना? देखो इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हो रहा है, दैट स्टेबलाइज द एनी फैक्टर और एनीथिंग दैट स्टेबलाइज द इंटरमीडिएट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना? तो वो बात आती है वहां पे, है ना? और अभी मुझे कौन बताएगा सेकंड रिएक्शन क्या हुई थी फिर हमारी? इबाद कौन है? इबाद, रोल नंबर 44। इबाद, अस्मिता पाटिल 52 रोल नंबर। यस, अस्मिता पाटिल 52 रोल नंबर। चलो जाने दो, कौन बोलेगा, क्योंकि 15 मिनट से और हमको है ना ये लास्ट रिएक्शन है ना कवर करना है, फिर कल हो सके तो हम एमसीक्यू देखेंगे या न्यू टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। कोई बोलेगा, एनीवन इंटरेस्टेड टू डिस्कस द बायोमोलिक्यूलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? yes sir. हाँ यस Sir, it is a second पूनम, order kinetic हाँ यस यस, because it rate बोलो depend बोलो, on two इट इज डेफिनेटली, है ना? It is the second order reaction if the benzene that containing the aromatic system, है ना? तो nucleophilic attack on a same carbon atom, and first of all nucleophilic attack और क्या होता है, pi bond break होता है, and both the electron transferred to any one of the carbon atom of aromatic ring, that is giving the aryl anion, aryl carbon ion होता है। then carbon ion undergo the resonance, और second step में क्या होता है, loss of living group and formation of a Nucleophile. substituted product। तो फर्स्ट स्टेप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्म होता है। फर्स्ट स्टेप ही क्या रहती है, स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप में बोथ द सबस्ट्रेट एज वेल एज रिएजेंट इन्वॉल्व, मींस कमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडिंग ऑन अ concentration of the substrate as well as reagent, and reaction follow the second order kinetic। Now the third reaction, now the third mechanism by which the aromatic compound undergo the aromatic nucleophilic substitution reaction is called arine intermediate mechanism, or also called as the benzene intermediate reaction, या also called as the elimination addition reaction। ये रिएक्शन को देखो आइडेंटिफाई करते हैं अलग अलग 3 नामों से, कौन से है? एक तो सब में पहले है elimination addition reaction, second one is called as the benzene intermediate reaction, या otherwise also called as the arine as a intermediate reaction। समझ में आ गया ये कौन सा मैकेनिज्म है, क्या बोलते हैं ये मैकेनिज्म को? अराइन इंटरमीडिएट। अराइन। सेकंड वन इसको बेंजाइन भी बोलते हैं, BENZYNE, बेंजाइन इंटरमीडिएट रिएक्शन। अराइन या बेंजीन, बेंजीन बोले तो क्या रहता है, दैट कंटेनिंग द 3 बॉन्ड, है ना? बट the benzene that containing the 2 double bond and 1 3 bond, 1 triple bond, that compound is called as the benzene। जैसे देखो आपके स्लाइड में देखो जो सेंट्रल स्ट्रक्चर दिख रहा है, this is the benzene। ये क्या है? ये बेंजाइन है। समझ में आ गया आपको बेंजाइन? और इसी को अराइंस बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, अराइंस। दिस कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड एज द बेंजाइन और आल्सो कॉल्ड एज द अराइंस। ये समझ में आया व्हाई दिस रिएक्शन और मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज द अराइन इंटरमीडिएट मैकेनिज्म और बेंजाइन इंटरमीडिएट, बिकॉज द रिएक्शन इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ बेंजाइन और अराइन एज अ इंटरमीडिएट। गॉट इट? सर वो Yes, sir. स्ट्रक्चर कैसा है? एक मिनट मैं स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर लेता हूँ। यस सर। This is the cyclohexane,
दिस इज साइक्लोहेक्सीन, दिस इज साइक्लोडाइहेक्सीन और दिस इज साइक्लोट्राइहेक्सीन, बराबर है? या बेंजीन बोलेंगे इसको? यस सर, बेंजीन बोलेंगे इसको, है ना? साइक्लोहेक्साट्राइन नहीं बोलेंगे इसको, है ना? इसको क्या बोलेंगे हम? बेंजीन बेंजीन। बोलेंगे। नेवर कॉल्ड एज साइक्लोहेक्साट्राइन। साइक्लोहेक्साट्राइन इज टोटली द डिफरेंट। फिर उसमें ना बॉन्ड लेंथ भी बराबर नहीं आएंगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। समझ में आ रहा है ना? है ना? यस सर, हाँ, तो ये क्या है? बेंजीन। अब इसको बोलेंगे हम बेंजाइन। दिस इज द बेंजाइन और आल्सो कॉल्ड एज द अराइन। समझ में आ गया आपको? यस सर। अरे यार शिट, एक मिनट, वो डिलीट हो गया एक्चुअली। क्या बोला? एक 5-10 मिनट रुको बस। हाँ, दिस इज द बेंजाइन। ये समझ में आ गया आपको? बेंजाइन बोलो तो क्या? यस सर, हाँ, वो है ना सैनिटाइजर। बेंजाइन समझ में आ गया आपको? अराइन समझ में आ गया क्या है? तो द कंपाउंड दैट कंटेनिंग द 2 डबल बॉन्ड एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड। ये देखो, ये है ना, बहुत साल पहले मैंने एक पेपर सेट किया था, तो उसमें ना बेंजाइन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ बेंजाइन इंटरमीडिएट या अराइन इंटरमीडिएट बोल के डाला था, है ना? तो ऐसा भी आपको है ना कंफ्यूजन करने के लिए या थोड़ा सा टिल्ट करने के लिए क्वेश्चन क्या रहता है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अराइन इंटरमीडिएट या बेंजाइन इंटरमीडिएट। तो पूरे केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही एक वाहिद रिएक्शन है दैट इज आइडेंटिफाइड बाय द अराइन इंटरमीडिएट रिएक्शन या बेंजाइन इंटरमीडिएट। तो ये समझ में आ गया आपको? क्या आपको कभी बाय द चांस पूछा या किसी ने, या आपको किधर आया तो ये समझ में आ जाएंगे यही रिएक्शन है, तो Yes, sir. है ना? Yes, तो अब sir. इसका मैकेनिज्म हमें ना देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकते इसको, पर बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है इसका। व्हेन अ अरील हैलाइड, point note that when a aryl halide means the aromatic compound or benzene compound that containing the halogen group. Halogen may be any one of the, like chlorine, bromine, iodine, fluorine, है ना? कोई भी halogen group. When a aryl halide that at least one orthohydrogen atom means what? Yes, Poonam? Can you repeat? When a aryl halide with at least one orthohydrogen, बोलो तो क्या है? एक हेलो अरील कंपाउंड है, अरील हैलाइड है, जैसा क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, आयोडोबेंजीन है, फ्लोरोबेंजीन है, दैट एटलीस्ट कंटेन द वन अर्थोहाइड्रोजन एटम। बोलो तो उसके रिस्पेक्ट में जो अर्थोकार्बन एटम है, दैट अर्थोकार्बन शुड हैव द एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम। जैसा इसके पहले एक कंडीशन थी रिएक्शन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट और फैमिलियर रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है जिसमें वो बोलते हैं कि अल्फा कार्बन एटम शुड हैव द एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम? कौन सी रिएक्शन है, पहचानो? बाय द चांस नवंबर में एग्जाम Sir, का ये aldol, रेगुलर क्लास, aldol, डेफिनेटली अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन में क्या रहता है? अल्फा कार्बन एटम शुड कंटेन द alpha, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम, है ना? तो इसी yes, sir. यहाँ पर भी सेम इसी कंडीशन है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? व्हेन अरील हैलाइड विथ एटलीस्ट वन अर्थोहाइड्रोजन आर treated with a strong base, that is sodium amide and or potassium amide. When aryl halide with at least one orthohydrogen atom, ये देखो ये aryl halide है, क्लोरोबेंजीन है। when aryl halide that containing at least one orthohydrogen atom, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे तो दोनों भी हाइड्रोजन एटम है, that containing at least one orthohydrogen when treated with a strong potassium amide या sodium amide NaNH2, सोडियम अमाइड इन लिक्विड अमोनिया। सॉल्वेंट कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पे? Liquid. Liquid ammonia. लिक्विड अमोनिया। द हेलोजन ग्रुप दे गेट डिस्प्लेस्ड, क्या हो रहा है यहाँ पे? और सब्स्टिट्यूटेड बाय द अमाइनो ग्रुप। द हेलोजन ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड
or replaced by the amino group. Formation of a corresponding aryl, formation of a corresponding aryl amine, formation of a corresponding aryl amine, that is called as the aniline. And this reaction proceeds through the intermediate of benzene or arine. That's why the reaction is known as the arine intermediate reaction, या also called as the elimination addition reaction, या otherwise इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइन इंटरमीडिएट रिएक्शन. तो इसका प्रिंसिपल या स्टेटमेंट समझ में आ गया क्या है? तो कोई बोलेगा? व्हाट से रिपीट कीजिए. प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल इसका. Sir, when aryl halide which have at least one ortho hydrogen atom and treated with sodium amide in liquid ammonia, the halogen group displaced or replaced by amino group and formation of corresponding aryl amine. And the reaction proceeds through the intermediate formation of benzene or arine. That's why the reaction is called arine intermediate, है ना? तो ये समझ में आ गया बोले तो. But the reaction is reaction condition क्या है यहाँ पे? Strong base, that is sodium amide या potassium amide, and liquid ammonia है यहाँ पर, है ना? ये याद रख लेने का. The same reaction is also proceed in presence of the alkyl lithium or phenyl lithium. देखो यहाँ पर. The reaction is also proceed in presence of the catalyst like phenyl lithium or alkyl lithium formation, but in this case formation of the biphenyl compound. यहाँ पे ना क्या फॉर्म हो रहा है? बाइफिनिल कंपाउंड हो रहा है. वहां पे जब हम है ना स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे तो है ना NH2 ग्रुप रहता है, इसलिए क्या फॉर्म हो रहा है वहां पे? एनिलीन फॉर्म हो रहा है ना? और यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है? बाइफिनिल कंपाउंड आ रहा है. समझ में आ रहा है आपको? अल्किल, एक तो अल्किल सब्स्टिट्यूटेड होगा कभी अल्किल लिथियम में ये किया तो, या अदरवाइज फिनिल सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइन फॉर्म होगा कभी फिनिल लिथियम लिया तो. ये समझ में आ गया आपको? Yes, sir. हाँ हाँ हाँ. तो ये समझ में आ गई बात आपको? Yes, sir. यस. हाँ तो एक अभी देखो हमने ना एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ा, मेथड ऑफ द सिंथेसिस ऑफ एनिलीन, Yes, sir. है ना? आपको सर ने लिया है ना, एनिलीन हुआ आपका? यस. Yes, हेलो, sir. Yes, sir. है ना? तो ये मेथड समझ में आएगी. मेथड ऑफ द सिंथेसिस ऑफ एनिलीन कैसे प्रिपेयर करेंगे हम? व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद सोडियम अमाइड या पोटेशियम अमाइड इन लिक्विड अमोनिया गिविंग द एनिलीन. तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया. और यहाँ पे क्या हो गया? हम मैकेनिज्म बोल के देख रहे हैं इसको. ये समझ में आ गया आपको? Yes. सर ये बेंजाइन से बाइफिनाइल में कन्वर्ट कैसे होगा अपने आप? ये देखो ये, हाँ जब हम इसको ना ट्रीट करेंगे, इसको रिएक्शन कंडीशन ऐसे देख दो, जस्ट ट्रीटेड एट अ हायर टेम्परेचर. व्हेन अ क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद द फिनिल लिथियम, तो एट अ हायर टेम्परेचर गिविंग द बाइफिनिल कंपाउंड, है ना? Yes, ये sir. टोलिन कैसे प्रिपेयर करेंगे? टोलिन कैसे प्रिपेयर करेंगे? यहाँ पे से हम व्हेन मिथिल lithium is treated with a chlorobenzene at a higher temperature giving the toluene. समझ में आ गया? टोलिन मिल जाएंगे हमको. यस सर. अभी ये देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोले तो है ना, इस पे से पता चलेगा मुझे और तुमको भी कि आपने फर्स्ट ईयर में ना या 12th में ना कितने अच्छे से पढ़ा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना? तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बोलो कौन उसका आंसर देगा. क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज द सोर्स ऑफ डैश डैश? काय का सोर्स है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? एनीवन? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? यस, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है. इन दैट यस 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 RMGX. yes RMG. So definitely in that the carbon is bonded with the magnesium. समझ में आया आपको? हाँ Yes, sir. हेलो, है ना? तो कार्बन इज बॉन्डेड विथ द मैग्नीशियम, बट दिस इज द पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड? जल्दी जल्दी आंसर दो, टाइम हमारे पास में कम है. Polar bond. Polar bond, because there is a large difference of electronegativity between a carbon atom and magnesium. Which one is the more electronegative? कार्बन.
carbon atom is a more electronegative. That's why if the bond break between a carbon atom and magnesium atom, so both the electron is transferred to which atom? Both the electron is transferred to which atom? Carbon atom. Carbon atom. That's why carbon atom getting which charge? Negative charge. Negative charge. And negative charge element is called as the nucleophile. बोलते हैं या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. तो फिर जब वंस द नेगेटिव चार्ज मिथिल ग्रुप फॉर्म हो गया तो वो न्यूक्लियोफाइल यानी इट अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. है ना? ये समझ में आ गया? बोलो तो इसका मैकेनिज्म ही समझ में आ गया आपको. देखो यहाँ पर, देखो आपके स्क्रीन में नजर आ रहा है मिथिल लिथियम. तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन एटम पे क्या आ जा रहा है, फिर यहाँ पे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जा रही है ना यहाँ पे. ये इससे बॉन्डेड भी रहा, कार्बन एटम लिथियम से बॉन्डेड भी रहा ना, तो स्टिल दिस इज द न्यूक्लियोफाइल. बट द न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी क्या रहेंगी, कम रहेंगी, बिकॉज इस पे एकदम फुल चार्ज नहीं है इस पे. बट व्हेन द covalent bond between carbon atom and lithium break, the complete negative charge is on a carbon atom. Now the nucleophilicity of this carbon atom is higher. Once we treat with this compound at a higher temperature, तो ये क्या करता है, इसको रिप्लेस करता है, इसको क्या करता है, रिप्लेस करता है, और क्या फॉर्म हो जाता है यहाँ पे, टोल्यूइन फॉर्म होता है. सेम वे फिनिल लिथियम हम इसके साथ ट्रीट करते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे से ये फिनिल लिथियम का ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर से भी सेम फिनिल अनायन फॉर्म होगा, कार्बन आयन फॉर्म होगा, और यहाँ पे अटैच होके बाइफिनिल कंपाउंड फॉर्म होगा. तो ये समझ में आ गया अभी आपको? Yes, sir. सर लेकिन इसमें बाय प्रोडक्ट HCl होगा कि लिथियम क्लोराइड होगा? हाँ, इसमें लिथियम क्लोराइड रहेगा ना, लिथियम रहेगा, लिथियम Okay, रहेगा, sir. इसमें लिथियम रहेगा, फिर उसमें लिथियम क्लोराइड रहेगा उसमें. हाँ, यहाँ पर है, देखो सही बोला, सही पकड़ा आपने, लिथियम हाइलाइड है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, ये करेक्ट कर लो. हाँ, लिथियम क्लोराइड रहेगा उसमें, HCl नहीं रहेगा. हाँ, आया समझ में? Yes, sir. तो अरे देखिए, जो दूसरा बाइफिनिल कंपाउंड आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ये भी आपको है ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके 4th चैप्टर में. 4th चैप्टर जो आपका ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन. तो उसमें एक कंपाउंड है बाइफिनिल कंपाउंड. तो ये कैसा प्रिपेयर करने का समझ में आ गया आपको? Yes, sir. हाँ. अभी देखो इफ्तिकार सर का भी कॉल मुझे इमीडिएटली आएगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे. सैटरडे का कल भी हमको मिल रहा है ना एक लेक्चर, है ना? चलेगा Okay, sir. या कंटिन्यू कर Thank you, लेने का sir. इसको? कुछ Thank you, sir. डिफिकल्टी रही तो पूछो मुझे, मैं अभी इमीडिएटली आपको एक मेरे पास में एक बहुत अच्छा मुझे ये PDF मिल रहा है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, तो वो शेयर करता हूँ. उसमें से कुछ रिएक्शन ही हमारे काम के, बाकी के मैं उतना ही एब्स्ट्रैक्ट करके आपको भेज देता हूँ, देख लो एक मरतबा. हाँ, और रिगार्डिंग सिलेबस और रिगार्डिंग द नोट्स, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी जस्ट फ्री फ्रैंक टू आस्क मी, है ना? मैं आपको बता दूंगा कैसे उसको कलेक्ट करना है. तो आपको समझ में आया सर आपको? वो एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप बता देंगे तो हम वैसे प्रिपेयर करेंगे ना. आप क्वेश्चंस बताएंगे क्या? मैं देखो, मेरे पास में तो अभी क्या है पता है कि मेरे पास में क्वेश्चन बैंक भी है. मैं क्वेश्चन बैंक शेयर करता हूं आपको, या कल Okay. कभी हमारा है ना एक ही रिएक्शन मैकेनिज्म, उसके बाद में हम ना क्वेश्चन आंसर दोनों भी डिस्कस करेंगे. पर अभी देखो ये कोविड का ही सिचुएशन में भी कंटिन्यू रहता है, तो उस टाइम में है ना नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर इज टोटली डिफरेंट. जैसा है ना, देखो अभी जो 1 अक्टूबर से एग्जाम स्टार्ट हो रही है, तो दैट इज टोटली बेस्ड ऑन MCQ. व्हाट इट? Yes, sir. तो बाय द चांस कभी है ना सेम कभी कोविड सिचुएशन कंटिन्यू रहता है ना, तो MCQ ही टेस्ट रहेंगी, या रिकवर होता है इंशाल्लाह हो जाने को ना, तो उसके बाद में फिर आपका रेगुलर एग्जाम रहेंगी. तो दैट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, है ना? तो भी हमें ना जो रेगुलर पैटर्न है वो कल डिस्कस करेंगे MCQ वगैरह. हाँ, कुछ डिफिकल्टी रही तो फ्री फ्रैंक टू आस्क मी ऑन व्हाट्सएप और व्हाटएवर डिफरेंट, है ना? Okay, sir. Thank you, sir.